معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہندوستان کو مذہبی آزادی کے بلیک لسٹ میں رکھنا چاہیے، امریکی پینل۔ WAR2 1998 زمین کے 39,08,791 میل کے فاصلے پر گزرے گا۔ کورونا وائرس کی شدت کو دیکھتے ہوئے WHO کی جانب سے 30 جنوری کو ہی عالمگیر سطح پر ایمرجنسی لگانے کی مانگ کی گئی، جسے عالمی ملکوں نے نظر انداز کر دیا۔ کورونا وائرس دنیا پر چھا گیا، ہر طرف ہلاکتیں ہی ہلاکتیں۔ ترکی میں ایک دن میں کورونا کے 2392 نئے معاملات۔ شام کے شہر آفرین میں آج پیٹرول ٹرک میں ہوئے زبردست دھماکے میں 47 افراد ہلاک۔ وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے کو بہار پٹنہ سے RJD کے رکن اسمبلی سروج یادو کا فون۔ ادھو ٹھاکرے نے کی سادگی اور اطمینان سے بات، آپ بھی سنیے۔ نہیں رہے اداکار عرفان خان، ممبئی کے اسپتال میں لی آخری سانس۔ چند روز قبل والدہ کی ہوئی تھی وفات۔ چیئرمین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر تلنگانہ اسمبلی اکبر الدین اویسی نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ۔ ریاست آندھرا پردیش میں لاک ڈاؤن میں نرمی، ریاستی حکومت کی جانب سے نئے گائیڈ لائنز جاری۔ ملابار چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے کڑپا میں 200 خاندانوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد بادشاہ نے اسے قابل تقلید قرار دیا۔ آج کڑپا میں DCC بینک امپلائیز ایسوسی ایشن کی جانب سے کووڈ-19 ڈسٹرکٹ ویلفیئر فنڈ میں 20,32,000 روپیوں کا عطیہ دیا گیا۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کو مذہبی آزادی کے بلیک لسٹ میں رکھنا چاہیے، امریکی پینل۔ امریکی حکومت کے ایک پینل نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں سخت بدحالی پر ہندوستان کو مذہبی آزادی کے بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے نئی دہلی سے شدید رد عمل کا آغاز ہوا۔ منگل کے روز شائع ہونے والی ایک سالانہ رپورٹ میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF نے کہا کہ ہندوستان کو خاص طور پر تشویش والے ممالک کی صف میں شامل ہونا چاہیے، جو ان کے ریکارڈ میں بہتری نہیں لانے پر پابندیوں سے مشروط ہوں گے۔ WAR2 1998 زمین کے 39,08,791 میل کے فاصلے پر گزرے گا۔ WAR2 1998 جس کو پہلی مرتبہ 1998 میں دیکھا گیا، 29 اپریل کو یہ زمین کے 39,08,751 میل کے فاصلے پر سے گزرے گا، جو 19,461 میل فی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اب بھی زمین اور چاند کے درمیان فاصلے سے 16 گنا زیادہ دور ہے۔ کورونا وائرس کی شدت کو دیکھتے ہوئے WHO کی جانب سے 30 جنوری کو ہی عالمگیر سطح پر ایمرجنسی لگانے کی مانگ کی گئی، جسے عالمی ملکوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس وقت صرف 82 کیسز ہی سامنے آئے تھے۔ We declared the highest level of emergency, global emergency on COVID. During that time, as you may remember, there were only 82 cases outside China. No cases in Latin America, actually. No cases in Africa. Only 10 cases in Europe. No deaths in the rest of the world. Nothing. And every country could have triggered all its public health measures possible. And then we advised the whole world to implement a comprehensive public health approach. And we said, find, test, isolate,
and do contact tracing and so on. One thing I would like to assure you is we will continue to give advice based on science and evidence. And then it will be up to the countries whether to take it or not. कोरोना वायरस दुनिया पर छा गया, हर तरफ हलाकतें ही हलाकतें। कोरोना से सबसे ज्यादा जानी नुकसान अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को हुआ है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस में 31,38,919 अफराद मुबतला हुए, जिनमें से अब तक 2,18,010 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 19,64,845 मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 56,967 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 9,56,064 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 59,266 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसमें मुब्तला होने वालों की मजमूई तादाद 10,35,265 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,32,128 मुसद्दिका मुतासिरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 23,822 हो चुकी है। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 27,359 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस के बाइस मजमूई हलाकतें 23,660 हो गयी। इस्लामी जमहूरिया ईरान में कोरोना वायरस में 92,584 अफराद मुब्तला हुए, जिनमें से 72,439 अफराद सेहतयाब हुए और 5,877 अफराद जान बहक हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अमवात की कुल तादाद 152 हो चुकी है, जबकि उसके मरीजों की तादाद 20,077 तक जा पहुंची है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 21,678 हो गई। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 6,314 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 2,992 हो गई और रूस में कुल अमवात 867 हो गई है। रशिया में अब तक 1 लाख के करीब इस वायरस में मुतासिर हो चुके हैं। 24 घंटों में मरने वालों की तादाद 108 हो गई है। मुकम्मल हलाक होने वालों की तादाद 972 हो चुकी है। तुर्की में एक दिन में कोरोना के 2,392 नए मामलात। आलमी वबा कोविड-19 से शदीद मुतासिर तुर्की में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके मद्देनजर मुल्क की कौमी फिजाई कंपनी तुर्क एयरलाइन ने 28 मई तक के लिए अपनी सभी कौमी और बैनुल अक़वामी परवाजें मुलतवी करने का ऐलान किया है। तुर्की के वजीर सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 2,392 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 92 मुतासिरीन की मौत हो चुकी है। तुर्की के वजीर सेहत ने ट्वीट करके बताया कि तुर्की में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 1,14,653 हो गई है, जबकि इस इन्फेक्शन से अब तक 2,992 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। तुर्की में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,230 लोगों की जांच की गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 9,48,115 लोगों की जांच हुई है। 38,809 लोग इस इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। शाम के शहर आफरीन में आज पेट्रोल ट्रक में हुए जबरदस्त धमाके में 47 अफराद हलाक। तुर्की के दफाई ओहदेदारों ने कहा कि कम से कम 47 आम शहरी उसी वक्त हलाक हो गए, जिस वक्त अपोजिशन के कब्जे वाले शाम के शहर आफरीन में पेट्रोल ट्रक में धमाका हो गया। 47 अफराद के शदीद जख्मी हो जाने की इतला भी मिली है। ये धमाका शहर के मारूफ इलाके में हुआ, जहां पर आवाम की भीड़ ज्यादा रहती है। किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। तुर्की फोर्स ने इसे कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट की कार्रवाई करार दिया। आजाद जराए से इतलात मिलना बाकी हैं। वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को बिहार पटना से आरजेडी के रुकन असेंबली सरोज यादव का फोन। उद्धव ठाकरे ने की सादगी और इत्मीनान से बात, आप भी सुनिए। सर बिहार पटना से। बोलिए बोलिए। सर मेरे यहाँ के कुछ लेबर आपके यहाँ 2-3 जगह फंस गए हैं, उन लोगों को खाने का भी पैसा नहीं है सर। नहीं, आप चिंता मत करो, जगह बोल दो। जी सर, तो जगह एड्रेस से लिखवा दे सर पूरे। एक काम करता हूँ, मैं वापस फोन मेरे ऑपरेटर के पास देता हूँ।
जी जी अगर किसी एक व्यक्ति का वहाँ से नाम और नंबर आप दे सकते हो जी जी तो अभी अभी देखिए सरोज जी, ऐसा है जी ये सबके लिए एक जिम्मेदारी की भी बात है जी 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 और सर एक बड़ा एक प्रश्न भी है। तो जी आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में कम से कम 87,000 लोगों की हमने खान पान की व्यवस्था की गई है। जी जी सर तो ये जहाँ भी होंगे और वहाँ तक अगर मदद मेरी पहुंची नहीं होगी तो आप बता दीजिए, मैं तुरंत करता हूँ। सर एक तो GSW स्टील प्लांट है, ये आपका डोलभी में है, जिला रायगढ़। यहाँ सर कंपनी वाला भी कुछ नहीं दे रहा, ये लोग 150 लेबर हैं, भूखे ओके। सर एकदम परेशान है सर। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं। और दूसरा एक है सर दे दिया जाना सर, एड्रेस लिखवा दे रहे हैं पूरा सर, नंबर दे दें। नहीं, GSW रायगढ़ पता है, दूसरा जी। से बोलिए। जी दूसरा एक है सर, ये थाने पूर्वी मुंबई में है, हाँ, वहाँ मेरे लेबर कुछ फंसे हैं सर, जो नहीं, कहाँ पे? मसाला थाने में कहाँ पे? ये थाने में है सर, थाने पूर्वी मुंबई महाराष्ट्र में। 2-3 लोगों का नंबर है सर, दीजिए। पछवाड़ी कोपरी कॉलोनी। हाँ, कोपरी पाखड़ी। जी जी सर, उसमें लोग फंसे हैं सर। हाँ, सर नंबर है? प्लीज नंबर है? सर, उनका नंबर मैं बता दे रहा हूँ सर, हाँ हाँ, 8097 8097 444 हाँ 592। 592 क्या? हरिवंश चौधरी नाम है सर। ओके, मैं अभी। और सर GSW वाला का नंबर सर को बता दे रहे हैं। हाँ, दीजिए। सर एक नंबर है 960 960 73 हाँ 88 88 642। 642। आप चिंता मत करो। हाँ? जी 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 सर। अच्छा, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं रहे अदाकार इरफान खान, मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। चंद रोज कबल वालिदा की हुई थी वफात। बॉलीवुड अदाकार इरफान खान का 53 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। वो मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल थे। उनकी हालत काफी तशवीशनाक बनी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इरफान खान पेट के मसले से जूझ रहे थे। इरफान खान न्यूरो एंड विक्राइन ट्यूमर से मुतासिर होने की वजह से इलाज करवाने लंदन गए थे। वो गुज़िश्ता बरस ही इलाज मुकम्मल करवा कर मुंबई वापस लौटे थे। ख्याल रहे कि 25 अप्रैल को इरफान खान की वालिदा सईदा बेगम का इंतकाल हुआ था। सईदा बेगम का ताल्लुक राजस्थान की इकलौती मुसलमान रियासत टोंक के नवाब खानदान से था। उनके आबा व अजदाद 19वीं सदी में अफगानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। मुल्क भर में लॉकडाउन के बाइस वो अपनी वालिदा की आखिरी रस्मात में भी शामिल नहीं हो सके थे। इत्तलाआत के मुताबिक उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए वालिदा की आखिरी रस्मात में शिरकत की थी। गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं। तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा, देख लें जो होता है सो। क्या बे? लाल रंग फपता है तेरे कुत्ते। ये वेजिटेरियन में समझना चाहिए, नॉन वेज में समझना चाहिए। Kids, this will give the parents nightmares. Is that good? It's fantastic. क्या बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। अरे भाई, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? जीने के लिए रोटी है, खाने के लिए जाएगा। क्या उठा लो ना, उठा लो ना बस। हस्बैंड कल रात बहुत देर से आए, वो कुछ नहीं बोले। Dear Elab, things are never as bad as they seem. ये कौन है? ये वही है जिन्होंने एक दिन डॉक्टर जेसी बोस को जालसाज कहा था, जिन्होंने उन पर लेबोरेटरी से चीज चुराने का इल्जाम लगाया था। दादा, मजे की बात ये देखिए कि हम लोग गैलीलियो का नाटक देखने जाते हैं और तालियां बजा बजा कर हॉल को हिला कर रख देते हैं।
चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली अकबरुद्दीन उवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बल्कि एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अखलाकी फर्ज भी बनता है कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ जो लोग जो इस ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का, सारे एनजीओज का, सारी तंजीमों का, सफाई के अमले का, और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर्स का और फिर नर्सिंग स्टाफ का, दूसरे लोगों का जो भी काम कर रहे हैं। बिलखुसूस मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, गांधी हॉस्पिटल के दूसरे क्लास 4 के एम्प्लॉयज और वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन सब का, ये सारे लोगों की कोशिश है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि बाज़ जगहों पे शिकायत है, जरूर थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, इंसान बशर है, हमसे भी हो रही हैं गलतियां, दूसरों से भी हो रही होगी। तो हर कोई अपनी जानिब से कोशिश कर रहा है और हर कोई काबिल मुबारकबाद है। अवामी नुमाइंदे भी अपनी तौर से जो भी हो सकता है कर रहे हैं, वुज़रा भी कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। रियासती हुकूमत जो गच्ची बौली में एक 1500 बिस्तर का दवाखाना बनाए हैं, इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूं हेल्थ मिनिस्टर ईटला राजेंद्र साहब को कि बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान नहीं है। हम 250 बिस्तर का बनाए हैं और कितनी तकालीफ हुई है हम जानते हैं, तो 1500 का दवाखाना बनाना काबिल मुबारकबाद है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम है। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अगर मेरे काम में कहीं पर कोई खामी है, कोई कमजोरी है जिसको दूर किया जा सकता है, तो जरूर मुझ पर भी तनकीद करें। मैं तनकीद को कबूल करने तैयार हूं, क्योंकि मेरी नीयत, मेरा मकसद ये है कि कुछ काम हो। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 नए मुस्बत मरीजों की शनाख्त की गई। ये तादाद बढ़कर 1332 हो गई। 29 अफराद डिस्चार्ज होकर सेहतयाब हुए हैं। इस तरह से अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 287 हो गई है, जबकि 31 अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस जिला गुंटूर में 283 पाए गए। कुल अजला में ये तादाद इस तरह है: कृष्णा में 236, कन्नूल में 343, नेल्लूर में 82, चित्तूर में 77, अनंतपुर में 58, कड़पा में 69, प्रकाशम में 60, विशाखापट्टनम में 23, श्रीकाकुलम में 5। इस तरह से जुमला 1332 मुस्बत मरीज पाए गए, जिनमें से 287 सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला कड़पा में 4 नए मरीज मुस्बत पाए गए। कड़पा में 1, मैतकुर में 1, वेमपल्ली में 1, चन्नूर में 1। इस तरह ताहाल 69 मरीज जिला कड़पा में पाए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन में नरमी, रियासती हुकूमत की जानिब से नए गाइडलाइंस जारी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, मरकजी हुकूमत के अहकामात के तहत आंध्र प्रदेश में हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी लाने और कई शोबों को इससे छूट देने का ऐलान किया है। रियासत में ज़रूरी शोबा हॉर्टिकल्चर के कामों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना किया गया है। अब रियासत भर में ज़रूरी शोबे के कामों को शुरू किया जा सकता है। पैकिंग और मार्केटिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मवाजियात में तामीरी कामों का आगाज, पावर लाइन्स और टेलीकॉम केबल्स के कामों की इजाजत रहेगी। इसमें इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को भी इजाजत दी जाएगी। मजदूरों को अंदरून रियासत जाने और मजदूरी के कामों की इजाजत दी जाएगी। बुक शॉप्स, इलेक्ट्रिक फैंस के दुकानात खुले रखे जा सकते हैं। मॉल्स की इजाजत नहीं होगी, ये बदस्तूर बंद ही रहेंगे, जबकि मवाजियात में वाक़े शॉप्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुले रखे जा सकते हैं। ये तमाम काम समाजी दूरी बरकरार रखते हुए किए जा सकेंगे। साथ ही एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी होगा। मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से कड़पा में 200 खानदानों में जरूरी अशिया की तकसीम। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यज़बी अमजद बादशाह ने इसे काबिल तकलीद करार दिया। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, कड़पा के 48वें डिवीजन YSR नगर में आज
मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 200 खानदानों में जरूरी अशिया के किश्त तकसीम किए गए। इस मौके पर नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यज़बी अमजद बादशाह ने कहा कि लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में मुखीर हजरात की जानिब से गरीब अफराद के लिए जरूरी अशिया की तकसीम का काम काबिल तारीफ व काबिल तकलीद है। कड़पा में हर दिन मुखीर हजरात के ताउन से तकरीबन 5 से 6 हजार अफराद में खाने के पैकेट्स की सरबराही का काम जारी है। ये तमाम काम शहर के अहले खैर हजरात के ताउन से किए जा रहे हैं। USR नगर में पहले भी 500 खानदानों में अनाज के पैकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं। अपील पर तकसीम का ये दूसरा मरहला है। अमजद बादशाह ने अवाम से कहा कि हर एक शख्स को मास्क का इस्तेमाल लाजिमी करना होगा, साथ ही समाजी दूरी बरकरार रखना जरूरी है। 3 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करना भी हर एक के लिए जरूरी है। रेड जोन इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद हैं। यहाँ के अवाम अपने घरों से बाहर ना निकले। मोबाइल गाड़ियों के जरिए से इन इलाकों में जरूरी अशिया भेजी जा रही है। अवाम अपने घरों और महलों में ही जरूरी अशिया की खरीदी करें। उन्होंने हर एक से हुकूमत की जानिब से दिए गए पाबंदियों पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की, ताकि कड़पा जिला कोरोना वायरस की वबा से पाक किया जा सके। अवाम के भरपूर ताउन से ही ये मुमकिन हो सकेगा। इस प्रोग्राम में YSR पार्टी कड़पा इंचार्ज यज़बी अहमद बादशाह, 31वें डिवीजन इंचार्ज अजमतुल्ला, मलाबार गोल्ड के डायरेक्टर मोहम्मद नाइम, मार्केटिंग इंचार्ज इसहाक बादशाह, 48वें डिवीजन इंचार्ज नागैया और दूसरे मौजूद थे। आज कड़पा में DCC बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड में 20,32,000 रुपयों का अतिया दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फिजिकल डायरेक्टर की जानिब से 1 लाख का अतिया दिया गया। जिला कलेक्टर कड़पा हरी किरण का इजहार तशक्कुर। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा में कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए जिला कलेक्टर की जानिब से कायम करदा कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड में आज चेयरमैन DCC बैंक ट्रूपाल रेड्डी ने 20,32,380 रुपयों का चेक जिला कलेक्टर हरी किरण के हवाले किया। इस मौके पर उनके हमरा जिला कड़पा MP YS अविनाश रेड्डी, मैतकूर MLA रघुरामी रेड्डी, कमलापुर MLA रविंद्रनाथ रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर कड़पा गौतमी और दूसरे मौजूद थे। कड़पा के अहले खैर हजरात जिला कलेक्टर कड़पा के इस अकाउंट नंबर पर अपने अतियात दे सकते हैं। कोविड-19 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कड़पा, बैंक अकाउंट 3190200100611873, IFSC कोड SYNB0003190, सिंडिकेट बैंक मेन ब्रांच कड़पा। 50,000 से ज्यादा की रकम अतिया करने वालों को कलेक्टर की जानिब से शुक्रिया की सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।